सो दोस्तों लास्ट पार्ट नंबर 13 in last part 13 we discussed one movie. You know that very well. First part of movie I discussed name of movie, you know that Badla Sant Ka. So this is, you can see that movie Badla Sant Ka, but you know that very well. In first part of movie we discussed some important points about villain. तो हम मूवी बनाने जा रहे हैं, उसमें हमने देखा सबसे पहले कुछ विलन्स आते हैं और वो धूम मचाते हैं। तो कौन से विलन थे, क्या था, वो जरा देखते हैं। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग गैल्वेनोमीटर एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस. बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर वी वुड लाइक टू मेजर करंट. So obviously any current measuring device is connected in series. Concentration required. This is the battery of 3 volt. You know that there is a resistor of 3 ohm. It is connected in series with this battery. So obviously current passing through this resistor, it is I is equal to V by R. So 3 by 3, that means 1 ampere. So one point is clear that the current passing through this resistor, it is 1 ampere. Exactly theoretically, or I can say that theory point of view, what is the true or actual value of current? It is 1 ampere. In short, 1 ampere current is passing through this 3 ohm resistor whenever it is connected with this 3 volt battery. Okay, now we would like to measure this current practically by using galvanometer. So that's why you can see this galvanometer is connected in series with this resistor 3 ohm. This is galvanometer. It is connected in series. What is the resistance? Resistance offered by coil of galvanometer, it is 60 ohm. क्यों गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसका हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया। क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक कॉइल से बना होता है और कॉइल कॉपर कॉइल होती है और वो कॉपर वायर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैल्वेनोमीटर. सो इट इज डिनोटेड बाय Rg. Rg already 60 ohm, you can see that. Okay friends, now we would like to current passing through this resistor. So one point is clear, this galvanometer is connected in series with resistor. So whatever the current passing through resistor, the same current passing through this galvanometer. यानी कि रेजिस्टर का करंट गैल्वेनोमीटर का करंट, तो इस गैल्वेनोमीटर का करंट मेजर करेंगे तो इतना करंट आएगा. करंट I is equal to V upon total resistance. Now not only R, but along with this R, the resistance offered by galvanometer is also get added in the circuit. लास्ट पार्ट में देखो, ये हमारा पहला विलन था दुश्मन. It is, you can see that resistance of a galvanometer. It is denoted by Rg, and this resistance get added in the circuit. So what happen if the resistance of the galvanometer get added in the circuit? You can see because of this Rg, the value of current already get changed. V already 3 volt, resistance 3 ohm, but the resistance of galvanometer now 60 ohm is get added. Suppose 60 ohm. Okay, मैं इधर 60 ohm ले रहा हूँ, तो 60. So if you simplify, then answer 0.048 ampere. आप देखो एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू 1 एम्पियर होनी चाहिए. यानी कि ये रेजिस्टर में से एग्जैक्टली 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है. बल्कि हमने अगर गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर किया तो उसकी वैल्यू आती है 0.048 एम्पियर. वास्ट डिफरेंस, यू कैन सी हियर 1 एम्पियर. If you measure the same current by using galvanometer, then it is 0.048 ampere. This is the problem of galvanometer. If a galvanometer is directly used as a current measuring device, then what happen? Then enemy number 1, villain number 1 get entered. It is the resistance of galvanometer, and this resistance of the galvanometer get added in the circuit, and that's why galvanometer can't measure true value of current. तो पहला दुश्मन आ गया. दूसरा प्रॉब्लम था सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी, you know that very well, galvanometer is very sensitive instrument. If you pass very small magnitude current, but galvanometer shows full scale deflection. बहुत ही छोटा सा करंट पास करवाएंगे तो भी गैल्वेनोमीटर जूम से ऐसा हो जाएगा. तो कोई बोले इससे होगा क्या? इससे होगा ऐसा कि गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर करंट को ही टॉलरेट कर सकता है और मेजर कर सकता है. उसको कहते हैं करंट मेजरिंग कैपेसिटी. लास्ट पार्ट 13 याद करो. करंट मेजरिंग कैपेसिटी डिनोटेड बाय Ig. If you pass current through galvanometer,
मोर देन Ig, then what happen? करंट मेजरिंग कैपेसिटी से ज्यादा करंट अगर गैलोमीटर में पास हुआ, मतलब गैलोमीटर गया काम से, अगर लंबे वक्त तक हाई मैग्नीट्यूड करंट या करंट मेजरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वैल्यू का करंट अगर गैलोमीटर में से पास होगा, तो ऑब्वियसली गैलोमीटर में I2RT इक्वेशन के मुताबिक लास्ट पार्ट में मैंने समझाया था, हीट एनर्जी जनरेट होगी, एंड बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हाट हैपन, इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल। मतलब Ig से ज्यादा करंट पास किया, ये स्लोगन दिया था मैंने, क्या Ig से ज्यादा करंट पास किया मतलब नया गैल्वेनोमीटर लिया, यू कैन से। तो सेंसिटिविटी भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, और इसलिए ये दोनों प्रॉब्लम्स के कारण हमें जानते हैं कि गैलोमीटर का हम सीधा यूज करंट मेजरिंग डिवाइस के तौर पे नहीं कर सकते। तो ये विलन आ गए मूवी में, ये धूम मचा रहे हैं, और अब होती है हीरो की एंट्री। और आप जानते हो हीरो आता है तो ये सब विलन को मार के भगा देता है, तो वो हीरो की एंट्री हो रही है, और ये हीरो का नाम है संट। इसीलिए ये अब चुन चुन के दोनों से बदला ले रहा है, और मूवी का नाम है बदला संट का। तो अब ये संट क्या धूम मचाता है वो अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हीरो की एंट्री होती है, उससे पहले हीरो की इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी। अब देखना, हीरो कोई भी मूवी में आता है तो उससे पहले एक छोटी मोटी फाइट होती है, और वो धूम मचा के वो एंट्री लेता है, बाद में वो मेन विलन के सामने आता है। तो इधर भी अपन लोग सबसे पहले संट क्या है वो डिस्कस करते हैं। SHUNT संट, मोस्ट IMP संट। What do you mean by shunt? Shunt is nothing but a very low value resistor. So what do you mean by shunt? Shunt is a very low value resistor. बहुत ही कम वैल्यू वाला रेजिस्टर होता है। आप मानोगे इसकी वैल्यू 0.004 ओम, 0.0005 ओम, ऐसी पकौड़ी जैसी वैल्यू होती है, मगर ये बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टर, मगर काम बहुत ही दमखम वाला करने वाला है। तो ये संट क्या करता है वो बाद में देखते हैं। डोंट फॉरगेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द संट। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय संट? संट ऑलवेज in the form of very low value resistor, and shunt is always connected in parallel with, we can say that, galvanometer. मोस्ट IMP याद से संट को आप जहां भी सर्किट में देखो तो संट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। अब इस संट को हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं और क्या धूम मचती है। तो जरा देखो, मोस्ट IMP यही डायग्राम में वापस ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, देयर इज रेजिस्टर ऑफ 3 ओम, and you can see that circuit is completed. Now we would like to enter shunt in this movie, और ये मूवी में अब शंट की एंट्री करवाते हैं। So shunt always connected, you know that very well. Shunt always connected in parallel. S is the shunt. Shunt is always connected in parallel with galvanometer. Just check it, galvanometer के साथ shunt है वो parallel में कनेक्ट कर दिया हमने। अब होगा क्या? What is the resistance offered by galvanometer? It is Rg, and whatever the resistance offered by shunt, it is denoted by S. Don't worry. Rg की वैल्यू मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, S का मतलब है शंट का रेजिस्टेंस। शंट दैट मींस वेरी लो वैल्यू रेजिस्टर। अब ये शंट की एंट्री से ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या अवॉइड हो जाएंगे या निकल जाएंगे या प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, देखते हैं। सबसे पहला काम, शंट लो वैल्यू रेजिस्टर है। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि शंट की एंट्री के बाद करंट मेजर करते हैं। चलो करंट मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं शंट है वो कनेक्ट करता हूं, सपोज 0.02 ओम का। चलो व्हाट इज द शंट? 0.02 ओम। यही न्यूमेरिकल यानी यही डेटा को आगे बढ़ाते हुए 3 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द RGT? 60 ओम, you can see, and now I have connected very low value resistor 0.02 ohm with this galvanometer but in parallel. अब क्या होता है, करंट की वैल्यू देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट I is equal to V upon total resistance of the circuit. So total resistance पे ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है, so पहले मैं ऐसा लिख दूं
Rg into S upon Rg plus S. Understood not? Because they both are in parallel. Resistance of galvanometer Rg, resistance of shunt S plus this resistor R. Okay, now I is equal to V. What is the value of V? V already 3 volt. Rg it is 60 multiplied by 0.02 divided by 60 plus 0.02 plus you can see that capital R already 3. You can see. Now if you set up the values and simplify, then what happens? 3. If you simplify this entire process, then what happens? देखो मैं इसको सोल्व करवाने का सिखाता हूँ. जनरली तो बहुत इजी पॉइंट. ये 60 के सामने 0.02 की वैल्यू बहुत ही कम होती है, पकौड़ी है जैसे समझ लो. तो ये 60 के सामने 0.02 को अपन लोग निगलेक्ट कर देते हैं, तो गया. अब बचा कितना? 60 into 0.02 डिवाइड बाय 60. 60 into 0.02 डिवाइड बाय 60. फॉरगेट अबाउट दिस टू. तो 60 कैंसिल. तो बचा कितना? 0.02. तो 3 डिवाइड बाय 3.02 होगा, क्योंकि 0.02 प्लस 3. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, आंसर आएगा जिसे कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0.999 एम्पियर, यानी अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी दैट 1 एम्पियर. तो पहले क्या था? 1 एम्पियर. जबरदस्त. आप देखो ये छोटा सा रजिस्टर कितनी धूम मचा रहा है, जबरदस्त. बिकॉज ऑफ दिस शंट व्हाट हैपन, द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर गेट डिसअपियर, और आई कैन से दैट गेट रिमूव्ड. सुपर. तो ये कहानी आप देखो, तो ये जिसे कह सकते शंट की जबरदस्त कहानी. इसीलिए मैंने बोला बदला शंट का. ये पहला बदला ले लिया किससे? रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर. यानी जो भी रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर सर्किट में धूम मचाता था, उसको ये शंट ने डाइल्यूट कर दिया पैरेलल कनेक्शन के कारण. कोई बोले ऐसा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा. सिंपल थिंकिंग करो, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है. पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण अपन लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है, वो दोनों रजिस्टर में जो छोटा रजिस्टर होता है उससे भी कम होता है. तो ये दोनों में 60 और 0.02 है, तो ये दोनों में छोटा क्या है? 0.02. तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0.02 से भी कम आएगा. यानी ये एंटायर पोर्शन का रेजिस्टेंस बहुत ही पकौड़िया जैसा हो गया. जबरदस्त. तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व. दूसरा प्रॉब्लम देखो, यहां से करंट निकला, ये करंट निकला आई. अब अपन लोग जानते हैं सेंसिटिविटी. इफ यू पास करंट थ्रू दिस गैलोमीटर, इट इज मोर देन Ig. गैल्वेनोमीटर में से तो Ig करंट पास होना चाहिए. अगर Ig से ज्यादा करंट पास किया, मतलब नया करंट लिया, तो यहां से करंट यहां आके रुकेगा. देखो अब यहां से दो रास्ते प्यार के, एक रास्ता इस साइड जाता है और दूसरा रास्ता इस साइड जाता है. अब करंट का मतलब है पानी ऑलवेज कौन सा रास्ता पसंद करेगा? जहां पे ढलान इजी हो. बहुत ही अपर ढलान वाला पॉइंट में नहीं जाता है. ढलान यानी रेजिस्टेंस. तो करंट भी रेजिस्टेंस देखता है. जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम, वो रास्ते पे जिसे कह सकते हैं कि करंट ज्यादा. तो ये दोनों में कौन सा रेजिस्टर है वो कम है? ऑब्वियसली शंट, वेरी लो वैल्यू रेजिस्टर. तो करंट यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, और मोस्ट ऑफ करंट विल पास थ्रू शंट. क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो मैक्सिमम करंट शंट में से पास हो जाएगा. अगर मैक्सिमम करंट शंट में से पास हो जाए, तो गैलोमीटर में से तो बहुत ही कम करंट पास होगा. कितना? उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी जितना. और गैल्वेनोमीटर में से अगर Ig यानी कि करंट मेजरिंग कैपेसिटी जितना करंट पास हो, तो गैलोमीटर ऑब्वियसली बचा रहेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी मेजरिंग कैपेसिटी है. तो आपका गैलोमीटर भी सेफ हो गया. देखो नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो ये शंट का कमाल है, जोरदार. तो ये मूवी का दूसरा नाम भी है कमाल शंट का, और ये प्रॉब्लम दोनों के लिए इसका नाम है बदला शंट का. जबरदस्त. So what is the role of shunt? You have discussed. You can see shunt, that means a very low value resistor. It is always connected in parallel with galvanometer. But now most important point, जैसे ही शंट की एंट्री होती है, गैल्वेनोमीटर का वजूद गायब. गैल्वेनोमीटर को कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. गैल्वेनोमीटर को अगर आप शंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करो, whenever galvanometer is connected with shunt in parallel way, then there is no existence of galvanometer. गैल्वेनोमीटर अपना वजूद खो बैठेगा,
और अब ये जो पोर्शन है जिसको मैं इधर जूम करके ड्रॉ कर रहा हूं, ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट जो दोनों पैरेलल में है, ये जो पोर्शन बना इसको कहते हैं अब ए मीटर। सुपर्ब, ये बन गया ए मीटर की एंट्री। तो अब गैलोमीटर नहीं बोलने का, इसको पूरे को कहते हैं ए मीटर, एंड ए मीटर इज वेरी यूजफुल टू मेजर करंट। तो ये करंट मेजरिंग डिवाइस हमने बनाया ए मीटर। दोस्तों जबरदस्त, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल कनेक्ट करो तो जो डिवाइस मिलता है उसको कहते हैं ए मीटर। और ए मीटर है वो हमने जिसे कह सकते बनाया, अभी तो हमने बनाया नहीं, अभी मैंने बताया, अब अपन लोग बनाने जा रहे हैं। अब देखो ये जो मैंने साथ साथ पैरेलल कहानी बताई, 1 एम्पियर वाली, फिर 0.048 एम्पियर वाली, फिर ये 1 एम्पियर वाली, वो हमने डिस्कशन किया इलास्ट्रेशन नंबर 4.13, टेक्स्ट बुक का 4.13 हमने निपट लिया बेस्ट। उसमें पहला पार्ट डिस्कस किया, एक दूसरा पार्ट डिस्कस किया। अब इसमें तीसरा भी क्वेश्चन पूछा है, इफ यू यूज आइडियल एमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, देन आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जिसे कह सकते होता ही नहीं है, मतलब ये आरजी है, यानी ये पोर्शन 0 ले लो तो करंट एग्जैक्टली क्या मिलेगा, 1 एम्पियर। सो मोस्ट आईएमपी। अब देखो ये जो एमीटर बना उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब जरा देखना बराबर, here we have connected shunt in parallel with galvanometer. Because of parallel combination, ultimately what we have done, we have reduced the resistance of this entire portion. तो कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस चिल्ला के एक बात बताता है, क्या, कि मेरा रेजिस्टेंस हो सके उतना कम रखो। तो आज से याद रखना फ्रेंड्स, करंट मेजरिंग डिवाइस देन इट्स रेजिस्टेंस ऑलवेज वेरी वेरी लो। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बोर्ड में पूछेंगे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, ऑब्वियसली 0, क्योंकि कोई भी करंट मेजरिंग डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस हो सके उतना कम रखना है। तो एमीटर अगर आइडियल बनाना हो, यानी करंट मेजरिंग डिवाइस आइडियल रखना हो, देन इट्स रेजिस्टेंस ऑलवेज 0। ये पहला पंच हमने डिस्कस किया। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि ए मीटर बनाना चाहते हैं, तो अब कहो ऐसा मन भावन अपन लोग ए मीटर बनाएंगे। मैं इसमें से बनाता हूं ताकि पता चले। अगर आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि सर मुझे मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट मेजर कर सके ऐसा गैल्वेनोमीटर, सॉरी ऐसा ए मीटर बनाना है, और वो भी गैल्वेनोमीटर की हेल्प लेके। ओके, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आपको ए मीटर बनाना है। सो यू नो दैट नाउ ए मीटर दैट मींस galvanometer is connected in parallel with shunt. If shunt is connected in parallel with galvanometer, then whatever the combination is obtained, whatever the structure is obtained, it is called a meter. तो ए मीटर बनाना हो, वो भी कितना मैक्सिमम करंट मेजर कर सके, 1 एम्पियर। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, डोंट फॉरगेट, गैल्वेनोमीटर। उसमें अपन लोग छेड़खानी करके, मॉडिफिकेशन करके करंट मेजरिंग डिवाइस बनाएंगे और वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस बनाएंगे। हमें पता चल गया करंट मेजरिंग डिवाइस बनाना हो तो गैल्वेनोमीटर के साथ कौन सी छेड़खानी करनी है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ए मीटर बनाना है, आपके पास गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर बनाने का एक राज अभी पता चल गया, उसके साथ लो वैल्यू रेजिस्टर कनेक्ट करने का, यानी शंट। अगर पहला क्वेश्चन आए कि कितने ओम का शंट ले, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लो वैल्यू रेजिस्टर और व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, वी हैव टू सिलेक्ट such that we can measure 1 एम्पियर करंट। तो इधर तो आ गया 0.02, मगर हमें कैसे पता चले कि इधर 0.02 ओम का रेजिस्टर हमें कनेक्ट करना है, तो ये कैसे होता है, इसके लिए हमें शंट का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस वन न्यूमेरिकल along with our discussion. You can see exact 4.13 we have discussed, illustration number 4.13 most IMP। मगर मैं जो समझाने जा रहा हूँ खास, अब अपन लोगों को शंट का फॉर्मूला डिराइव करना है। शंट क्या है, वापस देख लो, शंट दैट मींस अ वेरी लो वैल्यू रेजिस्टर, शंट always connected in parallel with galvanometer। whenever shunt is connected in parallel with galvanometer, then whatever the device is obtained, it is called a meter। This is the structure of a meter। चलो इसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ, what is the resistance of a meter? How can you calculate resistance of a meter?
तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसका रेजिस्टेंस Rg SS, तो ये रहा, दिस इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर। ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी कोई टेंशन मत लो, मैं एक ऐसा टेबल बना के दूंगा उसमें आपके हर एक फंडे क्लियर होने वाले हैं। अब अपन लोग जा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे, दैट मींस वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर शंट। So be ready for it because it is very IMP for board examination. Don't forget most IMP। और ये न्यूमेरिकल को साथ में रखेंगे ताकि हमको पता चलेगा। देखो, now we would like to derive, this is your target, obtain the formula for shunt. Ready? It is denoted by ASR. So we check the structure. This is your galvanometer and the shunt is connected in parallel with galvanometer. What is the total current? Total current of the circuit I. At this point, you know that very well, current is distributed into two parts. One part passing through galvanometer and one part passing through shunt. Okay, but you know that very well, because of shunt, current passing through galvanometer is always equal to its current measuring capacity. Shunt के कारण अब गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट तो शंट में से पास हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में तो सिर्फ उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी जितना करंट पास होगा। सो लेट द करंट पासिंग थ्रू शंट इज IS। ओके, नाउ देयर इज अ लूप, यू कैन सी दिस इज लूप A B C D। फॉर दिस लूप वी वुड लाइक टू अप्लाई KSL। सो राइट हियर अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर लूप A2 B2 C2 D2 A। You can see loop A to A। Okay, start. Already you can see current with you. What is the resistance offered by galvanometer Rg? What is the potential difference across this galvanometer? Ig Rg। current अपने साथ साथ, so minus potential। अब आता है B to C, उसमें कुछ नहीं। अब अपन लोग जा रहे हैं C to D, जबकि करंट आ रहा है हमारे सामने, so करंट सामने तो B पॉजिटिव। Okay, what is the resistance offered by shunt? It is S, current passing through shunt IS, so S into IS is equal to 0। Why 0? Because of closed loop, so SIS Rg into Ig, इसको इससे भेज दिया। Now S should be required in the form of subject, so it is Ig into Rg upon IS, you can see। But what do you mean by IS exactly? Check it। IS that means I में से Ig करंट पास हो रहा है, वो हमारा IS है, you can see। So IS that means I minus Ig, so shunt S is equal to Ig into Rg upon I minus Ig। This is the धूम इक्वेशन, very IMP। ये धूम मचाने वाला बड़े पैमाने पे। By using this equation, one can obtain the required value of shunt। Don't forget, to find the value of shunt, few parameters are required। Number 1, current measuring capacity of galvanometer। Number 2, resistance offered by galvanometer and maximum current measured by ammeter। अब देखो, ये रहा आपका ammeter, galvanometer, उसके साथ shunt, ये बन गया आपका ammeter और ये रहा। अब आपको जिसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना करंट मेजर करना है, अभी आपने बोला 1 एम्पियर, लिखते जाओ। S is equal to, okay, आपको कितना करंट मेजर करना है 1 एम्पियर, तो आपका I होगा 1 एम्पियर। What is the resistance offered by galvanometer? अपने आगे के केस में था 60। करंट मेजरिंग कैपेसिटी जो अपना है वो जिसे कह सकते हैं कि समझ लो 10 मिली एम्पियर है। 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर यानी 10 raised to -3, और इधर भी 10 into 10 raised to -3। इसको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आए वो आपका शंट होगा, बहुत ही कम वैल्यू आएगा, डोंट वरी। तो अब आप मुझे बोलो कि सर मुझे ऐसा एमीटर बनाना है जो मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट को मेजर कर सके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं गैल्वेनोमीटर लूंगा और उसकी रेटिंग चेक करूंगा कि वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। चलो मुझे पता चला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम। फिर मैं चेक करूंगा उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी, मुझे पता चला उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी है 10 मिली एम्पियर। फिर मैं ये सभी वैल्यू से इक्वेशन में रखूंगा और वैल्यू फाइंड करूंगा शंट। सपोज शंट की वैल्यू आई 0.045 ओम, 0.045 ओम। तो फिर मैं जाऊंगा मार्केट में
और इस वैल्यू का रजिस्टर लेके आऊंगा और वो गैलोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं गैलोमीटर के साथ इस वैल्यू का रजिस्टर कनेक्ट करूं, मतलब ये बन गया आपका ये मीटर जो मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट बिंदास मेजर करे, सुप्रीम। सो दिस इज, यू कैन सी दैट ए मीटर। तो दोस्तों हमने सबसे पहला काम किया इस लेक्चर में, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन कर दिया ए मीटर में। क्यों ऐसा किया, उसके पीछे के रास्ते दो। नंबर एक, अगर गैलोमीटर से मैं सीधा करंट मेजर करने जा रहा हूं तो मुझे दो प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर वन, resistance of galvanometer get added in the circuit, and number two, sensitivity of galvanometer। ये दोनों प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, शंट। शंट इज अ वेरी लो वैल्यू रेजिस्टर, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप शंट को पैरेलल कनेक्ट करते हो तो बन गया ए मीटर। मतलब आज से अगर आप गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना चाहते हो तो वो पॉसिबल होगा नहीं। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट कनेक्ट कर दोगे तो आप करंट मेजर कर पाओगे और उससे आपको करंट की ट्रू वैल्यू मिलती है। वो क्यों मिलती है सब हमने डिस्कस किया। इसलिए करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं मगर यूज होता है ए मीटर। मगर काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये मीटर बनता है तो गैल्वेनोमीटर में से ही है। गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को पैरेलल कनेक्ट करने से बनता है ए मीटर। तो आज से दोस्तों आपको ये लोग हर बार देंगे गैल्वेनोमीटर, फिर बोलेंगे कि हमें इतना करंट मेजर करना है, तो कैसे करोगे, बहुत इजी। सपोज मुझे अभी मैंने आपको बताया कि वी वुड लाइक टू मेजर 1 एम्पियर करंट बाय यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर तो मेरे पास है, उसका मुझे आरजी पता है, उसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी पता है और मुझे मैक्सिमम कितना करंट मेजर करना है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर मेरे को, कोई बोले 2 एम्पियर तो इधर 2 रखो, वैल्यूज रख के सिंपलीफाई करो, जो सन की वैल्यू आए वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दो, तो ये बन गया आपका ये मीटर। तो आज से करंट मेजरिंग डिवाइस के तौर पे एक डिवाइस एस्टेब्लिश हो गया ए मीटर। अगर बनता है किसमें से, गैल्वेनोमीटर में से। फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस्ड द सुप्रीम पॉइंट। और ये थियरी पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शंट, derive the formula for shunt। shunt क्या है? So shunt is a very low value resistor, it is always connected in always connected in parallel with galvanometer, most IMP low value resistor and connected in parallel with galvanometer। what is the formula for shunt? shunt S is equal to resistance of galvanometer multiplied by Ig, current measuring capacity, upon I minus Ig। super। Ig का मतलब आप जानते हो, Rg जानते हो, I का मतलब आप ए मीटर से कितना मैक्सिमम करंट मेजर करना चाहते हो। मोस्ट आईएमपी पॉइंट वी हैव डिस्कस, ये पूछने के पूरे चांसेस है, डोंट फॉरगेट मोस्ट इंपोर्टेंट। एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं तो जरा देखो, देन वी थिंक अबाउट वोल्ट मीटर। उसके बाद अपन लोग बनाते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि होगा तो गैल्वेनोमीटर मगर उसमें ऐसी छेड़खानी करेंगे ताकि मिलेगा वोल्ट मीटर। ओके फ्रेंड्स, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। और लास्ट में मैं आपको ऐसा कंपैरिजन चार्ट देने वाला हूं, उससे आपके हर एक फंडे क्लियर, बराबर। तो जरा ध्यान रखना। नाउ यू कैन सी देयर इज गैल्वेनोमीटर इज गिवन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज गिवन 15 ohm। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 15 ohm, its current measuring capacity 4 milliampere, don't worry। then if you like to maximum current I is equal to 6 ampere by using galvanometer, then how can you measure it? तो वेरी इजी, गैल्वेनोमीटर से तो कुछ नहीं होगा, अपन लोग जानते हैं ए रहा गैल्वेनोमीटर, उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे शंट। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर? इट इज Rg and this is total current I, current passing through galvanometer Ig। तब इसका तो फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं शंट। तो क्वेश्चन यही पूछा है, what should be the value of shunt required to measure 6 ampere current by using this type of galvanometer having resistance 15 ohm and current measuring capacity 4 milliampere। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसमें शंट का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सो रिक्वायर्ड शंट S is equal to GIG upon I minus IG, sorry, RG into IG।
So RG already with us, it is 15 ohm. IG 4 milliampere, so 4 into 10 raised to minus 3. I 6 ampere, IG 4 into 10 raised to minus 3. If you set up the values and simplify, your answer 0.010. In your textbook, shunt is denoted by RS, so no problem, RS. तो अपन लोग RS से represent करेंगे. What do you mean by small RS? It is called simply shunt. So this value of shunt is required and it is connected in parallel with galvanometer, so we can obtain ammeter which can measure 6 ampere current. तो ये जाने अनजाने में हमने डिस्कस किया टेक्स्ट बुक का 4.28 नंबर का अनसोल्ड नंबर 4.28. पेपर इजी निकला तो वैसा पूछ लेंगे, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट. तो ये हमने बनाया गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर. दिस इज योर ए मीटर. तो ए मीटर का रिक्वायरमेंट पता चला. इट इज करंट मेजरिंग डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. सो फ्रेंड्स, नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट वोल्ट मीटर. तो जिस तरह गैल्वेनोमीटर से सीधा करंट मेजर नहीं किया जा सकता और करने जाते थे तो दो तकलीफें आती थी. एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और दूसरी उसकी सेंसिटिविटी. इसी तरह गैल्वेनोमीटर से कोई बोले मैं सीधा वोल्टेज मेजर कर लूं, समझ लो लोचे, मतलब वो होगा नहीं. तो अब अपन लोग देखने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, द मोस्ट आईएमपी पोर्शन नाउ अगेन. मगर सबसे आईएमपी शंट होगा, मैक्सिमम शंट वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस का क्वेश्चन है. वो बहुत ही लिमिटेड जोन में पूछते हैं, मगर अपन लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं टू जेड. यानी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट. ऑलमोस्ट मैं कहूँगा चैप्टर है वो कंप्लीट ही हो गया. बचे कुछ पॉइंट्स इतने डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट नहीं है. एनीवे, सो नाउ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर. चलो सबसे पहले यू कैन सी देयर इज अ बैटरी, देयर इज वन रेजिस्टेंस R1 and this is you can see that resistance R. I would like to measure potential difference across this resistor R. Suppose these are the 2 points AB. I would like to measure potential difference across AB. What's the formula for it? Potential difference across any resistor, that means current multiplied by resistance. So let the current passing through this resistor is I. तो अपन लोग I का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of I? Total potential here V upon total resistance. Total resistance R1 and R. So R1 plus R into R. This is the exact potential difference or voltage across this given resistor R. चलो ready? इतना होना चाहिए. This is called true value. I can say actual value. But we would like to measure not theoretically but practically, and that's why we have only one device with you. It is गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर आपके हाथों में थमा दिया जाता है और बोलते हैं कि अब वोल्टेज मेजर करो. ये वोल्टेज इधर मेजर करके बताओ. तो अपन लोग तो जानते हैं वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो मैं सबसे पहले इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं. मगर वोल्ट मीटर तो है ही नहीं हमारे पास तो है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस होगा Rg. कर दिया कनेक्ट. तो वापस वही के वही दुश्मन, रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर Rg गेट एडेड इन द सर्किट. चेक इट. अब होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या V R1 R नहीं होगा. देखो इधर व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB नाउ. So R and Rg both are connected in parallel. So here you can see that plus R into Rg upon R plus Rg into resistance यानी R. तो ये देखो इधर R1 plus R था. But now check the denominator. If you use galvanometer to measure the voltage, then you can see that what is the basic problem? Your denominator already get changed. Why denominator is get changed? Because of resistance get added in the circuit. And because of the resistance of this galvanometer, the exact or true value of voltage or potential difference across this resistor get affected. हमें मिलना चाहिए VAB. अब VAB नहीं मिलेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इधर धूम मचा रहा है. तो ये पहला प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम है खुदा ना खास्ता गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उससे ये रेजिस्टेंस कम हो तो
if second problem, if R is double less than RG, sorry R is sorry I can say that double greater than RG, then what happen, ये वैल्यू R की है, उससे RG बहुत ही छोटा है, पकौड़े जैसा, तो करंट यहाँ से आया, ये करंट यहाँ रुकेगा और वो तो देखेगा कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो अल्टीमेटली करंट किस तरफ भागेगा, मोस्ट ऑफ करंट भागेगा गैलोमीटर में, और मोस्ट ऑफ करंट अगर गैलोमीटर में से पास हुआ और खुदा ना खास्ता गैलोमीटर में से तो आईजी करंट पास होना चाहिए, और इधर तो करंट का बहाव आ रहा है, मतलब आईजी से भी ज्यादा करंट पास होगा, मतलब गैलोमीटर में से आईजी से ज्यादा करंट पास किया, नया गैलोमीटर लिया स्वाहा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम्स के कारण गैलोमीटर सीधा वोल्ट मीटर के तौर पे यूज होता नहीं है। ये थ्योरी पूछेंगे नहीं, डोंट वरी, बोर्ड में एक ही पूछा हुआ है, व्हाई गैलोमीटर इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली एज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। तो अपने को दो डिफिकल्टीज बतानी है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर एंड सेंसिटिविटी। इधर मैंने समझाया है, ये पूछेंगे नहीं। अब इसका भी सॉल्यूशन है, देखो इधर मैं क्या करता हूं, मुझे इस गैलोमीटर में से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करवाना है, क्योंकि अपन लोग जानते हैं अगर गैलोमीटर में से आईजी से भी ज्यादा करंट पास हुआ तो गैलोमीटर फंस गया, उड़ गया। तो गैलोमीटर में से करंट कम पास करवाना तो क्या करना चाहिए, कोई भी ब्रांच में से हो सके उतना करंट कम करवाना हो तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ाओ। तो इस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी है, अब अपने को इस ब्रांच का रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ाने का तो एक जरिया सीरीज है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये बी, अब इस गैलोमीटर के साथ, ये अपना गैलोमीटर था, दिस इज योर गैलोमीटर, नाउ विद दिस गैलोमीटर वन resistor of very high value is connected. What is the resistance of galometer RG? This is called the series resistor. देखो बिल्कुल संट से उल्टा, एमीटर से उल्टा। While making ammeter, you know that whenever you are dealing with ammeter from galometer, then very low value resistor is connected. What happened here? Here galometer is converted in the form of voltmeter, then very high value resistor is required. At that time, that means in the case of ammeter, shunt is a low value resistor and connected in parallel. Here, series resistor is a high value resistor and connected in series. तो वही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अब वहां पे जो कमाल शंट मचा रहा था धूम, वही धूम इधर मचाएगा सीरीज रेजिस्टर। इट इज डिनोटेड बाय आरएस। अब देखो आरएस की एंट्री से क्या होगा, आरएस वेरी लार्ज, 3000, 4000, 5000 हो, ऐसा जबरदस्त वैल्यू होती, बिकॉज ऑफ वेरी 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 हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाटएवर इज द करंट, मैक्सिमम करंट इस साइड आएगा नहीं, इस साइड तो सिर्फ कितना करंट आएगा, आईजी जितना करंट आएगा, तो बाकी का करंट किस में से पास होगा, रजिस्टर में। और ये रजिस्टर में से एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट पास हो तो उतना ही बेस्ट। इधर देखो प्लस, अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, जबरदस्त, यानी आरएस प्लस जी हो गया ना। The resistance of this portion becomes very very high fi. तो obviously जिसे कह सकते हैं कि मैं बताऊं आरजी की वैल्यू बहुत ही बढ़ गई, आरजी की वैल्यू इतनी जोरदार बढ़ गई कि आर के सामने आरजी इतना जोरदार है कि आर इज निगलेक्टेड। तो अब आर निगलेक्टेड हो जाए तो आरजी आरजी कैंसिल, तो आप देख लो यू कैन सी सेम। तो V अपॉन R1 प्लस R, V अपॉन R1 प्लस R, करंट की वैल्यू सॉरी पोटेंशियल सेम। तो ये सीरीज रजिस्टर का कमाल है। सीरीज रजिस्टर से एक तो क्या होगा कि एमीटर सॉरी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरा गैलोमीटर को कोई नुकसान नहीं होगा। सुपर। अगर दोस्तों इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन लोग डिराइव करते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए काम में आने वाला है, ये थियोरेटिकली कुछ काम में नहीं, डोंट वरी, इसका मैक्सिमम यूज न्यूमेरिकल में होने वाला है। तो मैं फिर भी इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूं, जरा देखो। सिर्फ इस ब्रांच को अपन लोग जूम करके इधर ड्रॉ कर देते हैं, जी and there is you can see that series resistance RS, A branch, A कह देता हूँ और ये B, ये पैरेलल है ना, so A और B, let the potential difference across AB is V, ये दोनों के बीच में PD है V, और अपन लोग ने नाम दिया था VAB। तो चलो यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे VB, what is the current IG, गैलोमीटर में से तो IG करंट पास होगा, तो अब अपन लोग किरचॉफ से करंट अप्लाई करें, VA minus GIG, sorry, what is the resistance offered by galvanometer, it is RG, RG into IG,
माइनस आई जी इंटू आर एस, इसके लिए इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आर जी आई एस, यू कैन सी, सॉरी आर एस आई जी। ओके, अब इसमें से आई जी कॉमन, सो आर जी प्लस आर एस, वी ए माइनस वी बी दैट मीन्स वी, so V upon Ig minus Rg is equal to Rs, and this is the Dhum equation of series resistor। तो ये इक्वेशन कब अप्लाई करोगे? जब आपको गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाना हो। तो अब आपको मैं पैरेलल स्टडी बता रहा हूं, इस साइड है अपने पास ए मीटर, इस साइड है वोल्ट मीटर, आपको दिया जाता है गैलोमीटर। अगर मुझे गैलोमीटर में से ए मीटर बनाना हो तो शंट लो, अगर मुझे गैलोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाना हो तो सीरीज रेजिस्टर लो। शंट वेरी लो वैल्यू रेजिस्टर, सीरीज रेजिस्टर वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टर। शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैलोमीटर, सीरीज रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैलोमीटर। ओके, अब आपको पूछे कि मुझे ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो मैक्सिमम 1 वोल्ट मेजर कर सके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो गैलोमीटर है उसका मैं रेजिस्टेंस मेजर कर लूंगे। Okay friends, suppose we would like to form a voltmeter, suppose we would like to obtain voltmeter from galvanometer। तो मुझे ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो 1 वोल्ट मेजर कर सके वोल्टेज। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास जो गैलोमीटर है उसका रेजिस्टेंस Rg और Ig मुझे रेटिंग के ऊपर से मिल जाएगा, और यही वैल्यू में जिसे कह सकते हैं इक्वेशन में रखूंगा। V मुझे 1 वोल्ट मेजर करना है, Ig और Rg मेरे पास रेटिंग से है, ये सभी वैल्यूज रख के मैं सोल्व करूंगा तो मुझे आई कैन ऑब्टेन सीरीज रेजिस्टर वैल्यू। सपोज वो 3500 ओम आता है, तो मैं एक गैलोमीटर के साथ 3500 ओम रेजिस्टर का हाई वैल्यू रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, तो ये बन गया अपना वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर 1 वोल्ट का पोटेंशियल मेजर कर सकेगा। तो दोस्तों ये हमने अल्टीमेटली दो चीजें की। नंबर 1, गैलोमीटर में से ए मीटर बनाया और गैलोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाया। तो गैलोमीटर में से ए मीटर और वोल्ट मीटर बनाने का फंडा हमें पता चल गया। अगर गैलोमीटर में से ए मीटर बनाना हो तो शंट, गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर बनाना हो तो सीरीज रेजिस्टर। शंट वेरी लो वैल्यू रेजिस्टर, हाई वैल्यू रेजिस्टर, शंट कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, while series resistor is connected in series। सपोज आपको ऐसा बोले कि मेरे पास एक जिसे कह सकते हैं कि गैलोमीटर है, you can see this is your galvanometer here। By using this galvanometer, what's the resistance of this galvanometer? Rg given, Rg already you can see that 12 ohm। Current measuring capacity of this galvanometer, it is 3 milliampere। And I would like to obtain voltmeter। मुझे ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो 18 वोल्ट का पोटेंशियल मेजर कर सके। So V 18 volt। So what should be the value of series resistor required? So I will apply this concept। Series resistor Rs is equal to V upon Ig minus Rg। V already 18 volt, Ig 3 milliampere minus Rg already 12 ohm। All values with you simplify, you will get answer 5988 ohm। तो इतने ओम का रेजिस्टर में इस गैलोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो ये मेरा बन गया वोल्टमीटर, और ये वोल्टमीटर मैक्सिमम 18 वोल्ट को मेजर कर सकता है। तो दोस्तों ये देखो हमने डिस्कशन भी किया किस तरह से गैल्वेनोमीटर में से वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। सुपर। और ये जाने अनजाने में हमने डिस्कस कर दिया unsolved number 4.27। You know that we have discussed 4.28 for ammeter, now 4.27 for voltmeter। So friends, very supreme points we have discussed, A to Z of galvanometer, then galvanometer to ammeter, then galvanometer to voltmeter, all points we have discussed। इसमें से 3 क्वेश्चंस IMP आज और लास्ट लेक्चर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, पार्ट जिसे कह सकते हैं कि 13 और पार्ट 14 दोनों में IMP जो पोर्शन है नंबर 1
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गैलोमीटर और मूविंग कॉइल गैलोमीटर। इस पार्ट में से दो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। नंबर 1, एक्सप्लेन डिफिकल्टीज अराइज व्हेन गैलोमीटर इज डायरेक्टली यूज्ड एज अ ammeter, and number 2, define shunt and obtain the formula for shunt। so friends, very interesting point। अब अपन लोग इसमें एक ही पॉइंट जो है वो ऐड करते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और आईएमपी, और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कंप्लीट करें उससे पहले आप लोग ये वो थोड़ा जिसे कह सकते पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करते हैं, यानी कि जो मैंने डिस्कस किया वो एक बार अच्छी तरह देखो और फिर अपन लोग इसमें शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो पार्ट 14 का सबसे इंटरेस्टिंग जोन अपन लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, सो मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay friends, so now we'll start the next point. You can see that here we would like to think about one tabular form, and this tabular form gives idea about A to Z of ammeter, galvanometer, voltmeter. So friends, just concentration required. Here what happened, you can see this is galvanometer. Galvanometer is given to you. From this galvanometer you would like to obtain ammeter or voltmeter. Then what we have to do? So this entire portion most time pay. First of all, you would like to obtain ammeter from galvanometer. Then what's the first point? Shunt is connected in parallel with galvanometer. And suppose you would like to obtain voltmeter from galvanometer. Then series resistor is connected. RS series resistor is connected in series with galvanometer. Shunt in parallel, series resistor in series. This is your ammeter, galvanometer and shunt in parallel, galvanometer and series resistor in series. So ammeter, voltmeter. What is the, we can say that what do you mean by shunt? Shunt is a very low value resistor. So what do you mean by series resistor is very high value resistor. What is the formula for shunt? It is Rg into Ig upon I minus Ig. ये सब पता होना चाहिए। Rg resistance occurred by galvanometer, Ig current measuring capacity of galvanometer. What do you mean by current measuring capacity? The value of current for which galvanometer shows full scale deflection, it is called its current measuring capacity. I का मतलब है maximum current which can be measured by this ammeter. Okay, so what is the formula for series resistor? It is V upon Ig minus Rg. So these are the two most IMP points if I have highlighted. Okay, so what do you mean by series resistor? Rs is equal to V upon Ig minus Rg. V is the maximum voltage which can be measured by this voltmeter. Ig, you know that current measuring capacity. Rg resistance offered by galvanometer. Okay, resistance of any current measuring device, always or should be as small as possible. जितना हो सके उतना कम होना चाहिए. Don't forget. So resistance of voltage measuring device should be as large as possible. कोई भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस का रेजिस्टेंस हो सके उतना बड़ा, इसलिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। करंट मेजरिंग डिवाइस का रेजिस्टेंस हो सके उतना कम करो, इसलिए हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, एक क्वेश्चन नीट में आया होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर ऑलवेज 0, सो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज ऑलवेज इनफाइनाइट, मोस्ट IMP. So don't forget, very important for NEET JEE. Okay friends, what is the formula for resistance of ammeter? ammeter बन गया, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसका रेजिस्टेंस Rg, इसका रेजिस्टेंस Rs, so both are in parallel. So this is the formula for resistance of ammeter. Similarly, what is the formula for resistance of voltmeter? तो ये अपना voltmeter है. What is the resistance of galvanometer? It is Rg or Rs in series. So Rg plus Rs, this is the resistance of voltmeter. अगर आपको वोल्टमीटर और एमीटर की रेंज बनानी है, दैट मींस टू मेक रेंज ऑफ एमीटर n टाइम्स, n गुना बढ़ाना है, अभी 2 एम्पियर में से 10 एम्पियर करना है, सो टू मेक रेंज ऑफ एमीटर n टाइम्स, 2 में से 10 एम्पियर करना मतलब कितना गुना बढ़ाना? 5, सो n you have to consider 5. then what is the required shunt? ये शॉर्टकट है, it is Rg upon n minus 1. Rg is the resistance offered by galvanometer. Similarly,
to make range of voltmeter n times what is the required series resistor. This is the formula of required series resistor to make range of voltmeter n times Rg into n minus 1. These are the most IMP formulae for JEE NEET. ओके, तो कुछ शॉर्टकट्स मैंने इधर लिखे हैं. मोस्ट IMP धूम पार्ट 1, धूम पार्ट 2 एंड धूम पार्ट 3. ओके, फर्स्ट वन, व्हेन पार्ट ऑफ टोटल करंट, चेक करो इधर से, यहां से टोटल करंट आया, उसमें से Ig जितना करंट गैलोमीटर में से पास हुआ और Is जितना करंट शंट में से पास हुआ. सो व्हेन पार्ट ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू शंट, then it is Is by I. You can see that. What do you mean by Is by I? टोटल जो करंट आई है उसमें से Is जितना करंट शंट में से पास हो, then what is the formula? It is Rg upon Rg plus Rs. Rg आप जानते हो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, स्मॉल Rs मतलब शंट. वेरी वेरी IMP. टोटल करंट का जो पार्ट अगर शंट में से पास होगा तो ये फॉर्मूला. अगर क्वेश्चन पूछे पार्ट ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू गैलोमीटर, then it is Ig by I. Here शंट so Is, here गैलोमीटर so Ig by I. तो फॉर्मूला देखो Rs अपॉन Rg प्लस Rs. याद रखने का फंडा, शंट में से बोले तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में, गैलोमीटर में से बोले तो शंट का रेजिस्टर न्यूमरेटर में. मोस्ट IMP. और अब इसको देखो, ये फॉर्मूला चेक करो, Rg into Rs अपॉन Rg प्लस Rs. व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. तो इधर देखो Rs है, Rg प्लस Rs है. ये इक्वेशन के दोनों बाजू अगर मैं कैपिटल Rg से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैपिटल Rg into स्मॉल Rs, कैपिटल Rg into Ig. बट कैपिटल Rg into स्मॉल Rs अपॉन Rg प्लस Rs, व्हाट इज दिस? दिस इज ए मीटर रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस ऑफ मीटर का एक शॉर्टकट और है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर का शॉर्टकट Rg into Ig अपॉन I. ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो भी सीधा आंसर आ जाए. सो Rg into Ig अपॉन I. जबरदस्त. तो ये सभी शॉर्टकट्स याद रखना कि अगर ये आप, मैं पूरा हट जाता हूं, देख लो, ये स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में होना चाहिए. इतना कर दो मतलब आपका वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैलोमीटर स्वाहा, सब कुछ दिमाग में आ गया. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. मोस्ट IMP पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड along with JEE NEET. So friends, this whole concept with you in next part, that means in part number 15, we will start with some JEE NEET formula, or I can say the JEE NEET shortcuts application. कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे. और इस टेक्स्ट बुक में अगर बचे कुचे कोई एमीटर और वोल्ट मीटर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो कवर करेंगे. बाकी ये चैप्टर के 2 पॉइंट से वो कवर करके ये चैप्टर अब जिसे कह सकते खत्म होने के कगार पे है. मगर ये आज का सबसे शानदार पॉइंट. डोंट फॉरगेट 14 नंबर मोस्ट IMP पॉइंट. सो जस्ट प्रिपेयर इट A to Z. वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ये टेबल चकाचक चाहिए. होमवर्क में 2 टाइम्स लिख के प्रिपेयर करो इसके हर एक शॉर्टकट. सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट पॉइंट.